موسم کی بات کریں، کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے۔ آج درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے۔ شام تک بارشیں برسانے والا سسٹم کراچی کی حدود سے نکل جائے گا۔ اس وقت شہر کا موسم کیسا ہے جانیں گے نمائندہ سما اقرا آوان سے۔ جی اقرا، کیسا موسم ہے اس وقت شہر قائد کا؟ جی بالکل، اس وقت شہر قائد کا موسم خوشگوار ہے اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ مطلع اس وقت جزوی طور پر ابر آلود ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج شہر قائد میں تیز بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، البتہ دوپہر کے اوقات میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ مانسون بارشوں کا جو اگلا اسپیل ہے وہ 27 اگست سے شہر قائد پر اثر انداز ہوگا۔ اس وقت کا جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور گرمی کی شدت اس وقت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ جی لاہور میں آج دن بھر موسم گرم اور دھوپ چھاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 23 اگست سے مانسون کا 8واں اسپیل آنے کا بتا دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی نمائندہ سما سامیہ سعید۔ جی سامیہ بتائیے۔ جی بالکل، لاہور میں سورج آج اپنی پوری آب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ موسم انتہائی گرم محسوس کیا جا رہا ہے، البتہ ہوا چلنے کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دن بھر میں بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مانسون کے 8ویں اسپیل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست کی رات سے مغربی ہوائیں شہر میں داخل ہوں گی، جس کے نتیجے میں 23 اگست سے 27 اگست تک مانسون کا 8واں اسپیل جاری ہوگا، جس میں بارشیں متوقع ہیں اور 8ویں اسپیل میں خوشگوار موسم جو ہے وہ لاہور میں داخل ہوگا، جس کے بعد سپتمبر کے آغاز سے ہم دیکھیں گے کہ موسم میں خاصی بہتری جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی چین کے وزیر خارجہ کی وطن واپسی روانگی اور اس وقت کے مناظر، یہ ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو رہے ہیں اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہاتھوں میں ہاتھ تھامے بچے بھی بہت ہی خوشگوار ماحول میں اس وقت انہیں الوداع کہہ رہے ہیں۔ یہی انداز ہے پاکستان کا معزز مہمانوں کو الوداع کہنے کا، اور خوشگوار ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی پرچم ہاتھ میں اٹھائے، پاکستان کے جھنڈے ہاتھ میں اٹھائے، اور جب بھی بات ہوتی ہے پاک چین دوستی کی تو یقینی طور پر پاک چین دوستی ہمیشہ زندہ باد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویجولز، یہ مناظر، بہت ہی زبردست ماحول میں الوداعی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مصافحہ کیا جا رہا ہے، گلے مل کر جو ان کا دورہ رہا ہے، کامیاب دورہ رہا ہے وانگ ای کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے بہت ساری اچھی یادیں سمیٹے وہ اس وقت واپس جا رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں، اور چینی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی، اور اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری اہم ملاقاتیں ہوئی اور مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور بچے اس وقت وہاں پر موجود ہیں جو کہ ہاتھوں میں چین کا پرچم تھامے، پاکستان کا پرچم تھامے، اس وقت ہاتھوں میں فلیگز ہیں، ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں میں، اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں انہیں الوداع کیا گیا، کیونکہ پاکستان اپنی بہترین سفارتکاری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور یہی آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، یہی ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بہت ہی خوشگوار ماحول میں معزز مہمانوں کا استقبال بھی ہوتا ہے شایان شان، اور الوداع بھی انہیں کیا جاتا ہے بہت ہی بہترین انداز میں۔ تو چین کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے میں نائب وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کیے، جیسا کہ سمہا نے لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھا چینی وزیر خارجہ کی ملاقاتوں کے حوالے سے، ان کے شیڈیول کے حوالے سے، اور کچھ اہم ملاقاتیں جو کہ انہوں نے اپنے اس 2 روزہ دورہ پاکستان میں مکمل کی ہے، اور ایک اچھا دورہ کر کے بہت ساری اچھی یادیں سمیٹ کر وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست استقبال، جس طرح سے شایان شان استقبال ہوتا ہے اسی طریقے سے شایان شان طریقے سے انہیں الوداع بھی کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خود پہنچے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس وقت اچھے گرم جوشی سے انہیں الوداع کیا گیا، اور ڈھیر ساری پاکستان کی عوام کی جانب سے ڈھیر ساری محبتیں سمیٹ کر چینی وزیر خارجہ اپنے وطن روانہ ہو رہے ہیں۔ اور اب بات اہم اجلاس کی، اہم مطالبات کی اور اہم سفارشات کی۔ آئی پی پی کا ملک کے 4 صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبوں کے قیام کا یہ اہم مطالبہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں نئے صوبوں کے قیام کی سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ اجلاس میں وزیر مملکت اون چودھری، صدر پنجاب رانا نذیر احمد اور دیگر عہدیدار شریک تھے۔ 4 صوبوں کو موجودہ تقاضوں کے مطابق
तीन नए सूबों में तकसीम किया जाए, ये एलामिया जारी हुआ है। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नए सूबे बनाने होंगे। अब्दुल अलीम खान ने ऐसा कहा है। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। अहम गुफ्तगू इस मौके पर सामने आई। सदर IPP की जानिब से ये अहम गुफ्तगू की गई और अहम सिफारिशात जो सामने आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। पार्टी इजलास में ये गुफ्तगू हुई। IPP की सेंट्रल कमेटी पहले ही नए सूबों के क़याम की करारदाद पेश कर चुकी है। एलामिया में ये कहा गया नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया, अवामी मसाइल के हल के हवाले से ये अहम गुफ्तगू की गई। वो कैसे जल्दी हल हो सकते हैं ये भी उनकी जानिब से बताया गया कि नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबों में हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे। ये अहम गुफ्तगू भी इस मौके पर सदर IPP वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस अहम इजलास में सामने आई है, जिसमें अहम मुतालबात सामने रखे गए, अहम सिफारिशात सामने रखी गई। अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये सिफारिशात सामने रखी गई कि नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन हो सकेगा। नए सूबों में हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे। अवाम की शिकायत के अजाले के लिए नए सूबे जल्द बनाए जाए, ये कहा गया अब्दुल अलीम खान की जानिब से। सेक्रेटरीट में इस हवाले से उन्होंने कहा गया है कि मीलों दूर से आने वाले शहरियों को भी रिलीफ मिल सकेगा। सदर IPP ने यह गुफ्तगू की है। गुज़श्ता 25 साल से सूबों की तकसीम की बात चल रही है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ऐसा कहा, अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई है, ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हो सका है। वक्त आ गया है कि बाहमी मुशावरत से नए सूबों के क़याम की राह हमवार हो। नए सूबे मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये अहम गुफ्तगू की गई हैं। तो अहम इजलास हुआ, अहम मुतालबात इसी इजलास में सामने आए और अहम सिफारिशात भी इसी इजलास में पेश की गई है और अहम गुफ्तगू भी इसी इजलास में की गई है। सदर IPP की जानिब से वो गुफ्तगू की गई है अवामी मसाइल के हल के लिए, वो गुफ्तगू की गई है वो परेशानियाँ, वो तकालीफ जो कि शहरियों को दरपेश आ रही है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए नए सूबे जल्द बनाए जाएँ, ये कहा गया अब्दुल अलीम खान की जानिब से। सेक्रेटरीट में मीलों दूर से आने वाले शहरियों को रिलीफ मिलेगा। सदर IPP ने ऐसा कहा। गुज़श्ता 25 साल से सूबों की तकसीम की बात चल रही है, अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई है, ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ है। अब्दुल अलीम खान ने यह कहा है, वक्त आ गया है कि बाहमी मुशावरत से नए सूबों के क़याम की राह हमवार हो। नए सूबे मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। तो IPP का मुल्क के चारों सूबों को तकसीम करके नए सूबों के क़याम का ये अहम मुतालबा, अहम सिफारिशात इस अहम इजलास में सामने आई है और जो अहम गुफ्तगू है इसमें सदर IPP की जानिब से वो भी सामने आई है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश की गई। इजलास में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, सदर पंजाब राना नज़ीर अहमद और दीगर अहदेदार भी शरीक हुए। चारों सूबों को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक 3 नए सूबों में तकसीम किया जाए, ये एलामिया जो जारी हुआ है उस एलामिया में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है, हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नए सूबे बनाना होंगे। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और अवामी मसाइल की शिकायत को हल करने के लिए, अवामी मसाइल को हल करने के लिए जो हम गुफ्तगू उन्होंने की है, कहते हैं कि अवाम की शिकायत के अजाले के लिए नए सूबे जल्द बनाए जाएं। विफाकी वज़ारतों और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 376 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। 4800 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है, जानेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, बताइएगा रिपोर्ट में क्या बताया गया है? देखिए, ये माली साल 2024-25 की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है जो कि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है वफाकी वजारतों, डिवीजन और मुख्तलिफ महकमों की। इसमें 376 अरब रुपए, ट्रिलियन रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट के 4800 से ज्यादा सफ़ात हैं और पेपरा क्वायद के खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक 284 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई। इसके अलावा नाकिस गैर मुकम्मल सिविल वर्क्स में ताख़ीर से 85 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियां हुई। वाजबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन की निशानदेही की गई है। सर्कुलर डेट की तस्वीर में नाकामी की वजह से 1200 अरब रुपए के नुकसान हुए। कवानीन
जो ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब, और अंदरूनी कंट्रोल की कमजोरियों के बाद 670 अरब, और नाकिस असासाजात मैनेजमेंट की वजह से 678 अरब की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। और इसके अलावा दीगर बहुत सारे मामला जो हैं इसमें उठाए गए हैं, खासतौर पर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी की गई हैं। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। DG FIA ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ऐप पर ब्रीफ किया। तफसील जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा क्या डिटेल्स आपके पास? जी, FIA ने इमिग्रेशन में आसानी पैदा करने के लिए और इंसानी स्मगलिंग का जो एक धंधा है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक AI बेस्ड एक ऐप तैयार की है कि जब इमिग्रेशन का अमला जो है वो लोगों की इमिग्रेशन कर रहा होगा तो उसमें ये सहूलत फराहम करेगा। इस हवाले से जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सबसे पहले शुरू किया जाएगा और इसमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जो लोग यहाँ से आते हैं या यहाँ से जो मुल्क से बाहर जाते हैं उनके लिए क्या सहूलियात जो है वो फराहम की जाती है, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर काफ़ी लंबी कतारें लग जाती थी। उसको भी इससे बचा जा सकता है कि AI ऐप के ज़रिए पहले से वहाँ पर मौजूद जो अमला होगा वो तमाम तफसीलात चेक कर लेगा और उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई और उसमें ये कहा गया है कि FIA के एक्ट में ज़रूरी तरमीम जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे के गांव बलेगोंद में हालिया सैलाब ने 4 मेगावाट बिजली घर तबाह कर दिया है। खपलू शहर एक हफ्ते से बिजली से महरूम है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुल्फ़िकार अली, बताइएगा कितना बड़ा इलाका मुतासर है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों यहाँ पर दरियाए हुश्ये में तुग़यानी की वजह से एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गांव है बलेगुन गांव उसको शदीद नुकसान पहुँचा था। और आप इस वक्त मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक 4 मेगावाट का बिजली घर हुआ करता था, जिसे जो फ्लड की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। वो इमारत मुनहदिम हो चुका है कि उसका पोर्शन, उसके साथ साथ जो बिजली के जो मशीनें थे, ट्रांसफार्मर थे, वो भी सारे बह चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। इसी वजह से अगर हम देखा जाए तो ज़िली हेडक्वार्टर खपलू शहर को बिजली फराहम करने का ये वाहिद ज़रिया था। इस वक्त तकरीबन एक हफ्ते से खपलू में बिजली बंद है। इन शाहिदीन है, उनका कहना है कि अगर ये बिजली घर ना होता तो उनका पूरा गांव इस सैलाबी रेले की जद में आ जाता था। और उनकी खुशकिस्मती से इस बिजली घर और जो बिजली घर के पाइप है उसने पानी को, रेले को बचाया और गांव को बचाकर एक बड़े नुकसान होने से बचाया है। जी।